کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3335 نمبر کی, کہ روحوں کے جھنڈ الگ الگ تھے. کہاں پہ تھے؟ آسمان پہ. جب ہم نے وعدہ الس لیا تھا, تمام روحیں جو اس دنیا میں آنی تھی وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھی, تو سب علیحدہ علیحدہ جھنڈ تھے. وہاں پر بھی جن روحوں کی آپس میں پہچان تھی, وہ ساری روحیں جو ہے وہ اس دنیا میں, ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے. کس نے فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہاں پہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, ایک دوسرے سے پہچان تھی نا, وہ دنیا میں بھی محبت کرتے ہیں. اور جو وہاں پہ غیر تھی وہ یہاں بھی خلاف ہے. تو اس لیے اگر کبھی لڑائی ہوتی, کسی سے کوئی آپ کے خلاف ہوتا ہے نا, تو سمجھے یہ تو بیچارہ اس زمانے سے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس زمانے سے یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی مجھے مزے کی حدیث لگی تھی, کیونکہ پھر ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کریں, یہ تو روحوں کیا تعلق ہے, تو اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہم سب کے لیے اور محبتیں رکھے. یہ تو میں ایسی آپ کو کہہ رہی ہوں, لیکن حدیث ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ حق ہے, وہ سچ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. تو اب ہم آتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 انشاءاللہ آج ہم کریں گے. اس سے پہلے آیت نمبر 24 میں ہم نے کیا پڑھا تھا, آپ کو یاد ہے نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کل سے جب ہوتا ہے نا وہ حکم ہوتا ہے, جیسے آرڈر کہتے ہیں نا کہ کسی کو دینا کہ اچھا یہ کرو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری محبتیں تمہارے ماں باپ سے, تمہاری اولاد سے, تمہارے بھائیوں سے, تمہارے کاروبار سے, تمہاری گھروں سے, وہ پوری 8 کی 8 چیزیں جو حلال محبتیں تھی, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر کے کہا کہ اگر یہ ساری محبتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں, تو پھر تم انتظار کرو. پھر ہم لوگ, مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پھر انتظار کرو کہ اللہ جب اپنا حکم لے آئے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین, کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کہ جو یہ محبتیں کرتے ہیں نا اور اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فاسق کہہ دیا نا. اب دیکھیے کئی دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے, ہم محبت کیسے ٹیسٹ کریں, ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, ہم کہتے تو ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنی محبت ہے, الحمدللہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے, تو پھر ٹیسٹ کیسے ہوگا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ واقعی ہم اس لیول پہ. اور یہاں تو جہاد کی بھی بات آ گئی. جہاد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان تک کا نذرانہ دے دینا. سب سے قیمتی تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جسے عزیز رکھتے ہیں وہ جان ہی ہوتی ہے نا, کہ وہ تک اللہ کی راہ میں دے دینا. تو اس کا ٹیسٹ بہت آسان ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے, جیسے اگر فار ایگزامپل آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے سامنے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے, تو کیا آپ ان کو سمجھاتے ہیں؟ کیا آپ ان کو سیریسلی, آپ کو درد ہونی شروع ہوتی ہے کہ کیا مطلب تم یہ کیا کر رہے ہو, یہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین یہ نہیں دیا ہوا, تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں, یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو بچے ہیں, آج کل کی دنیا میں بس اتنا تو اب چلتا ہے نا, خیر ہے تو رہنے دیتی ہوں, اب میں کتنا کہوں گی. یہ میں اپنے دل کی بھی آواز آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اگر ہسبینڈ نے کوئی ایسی بات کہہ دی, تو پھر ہمارے پاس یہ بھی بہانہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, تو اللہ کا حکم آرام سے چھوڑ دیں گے, رسول اللہ کی سنت آرام سے چھوڑ دیں گے. اب پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ بھی تو ہم نے رکھنا ہے نا. اور ساری چیزوں میں آپ ایک ایک چیز میں یہ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل کاروبار ہے, آپ اگر اس میں کاروبار میں کوئی جھوٹ بول کے آپ ڈیل کر رہی ہیں, یا جھوٹ بول کے کوئی چیز ایسی کر رہی ہیں, یا پھر آپ کا گھر ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جس سے تم محبت کرتے ہو, تو اس میں آپ سارا دن آپ اسی چکر میں رہتی ہیں کہ میں نے اس کو سجانا ہے, تو اس کو بنانا ہے, تو اس کی یہ کرنا, صفائی نصف ایمان ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے حکم, کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کی عبادت کرنا, اور لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں, آپ اللہ کی راہ میں نکل کے کیسے کام کر رہے ہو, آپ وہ سارا کچھ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. تو آپ یہی تو نہیں کہ آپ سارا وقت یہی کرتے رہ رہے ہو. تو دیر از اے لاٹ آف دم, پوری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے حکم اور یہ ساری چیزوں میں اگر, کیونکہ یہ دنیا کی محبتیں جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے اگر آپ سوچیں تو یہ ہمیں کمزور کر دیتی ہیں. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے یہ ہمیں کمزور کر دیتی ہیں. لیکن جب ہمیں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا, تو وہ ہمیں مضبوط کرتی ہے. اللہ کی جس کو محبت مل جائے, جس کو سمجھ آ جائے اللہ کی محبت کی, رسول اللہ کی, کہ نہیں میں دین پہ بج نہیں کر سکتی ہوں, دین کے معاملے میں
मुझसे ऐसी बात नहीं करो, हाँ आई लव यू सो मच, जान भी हाजिर है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो दीन के अगेंस्ट है तो मैं ये नहीं करूंगी। अब देखिए, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल और आपको देती हूँ। कई दफा हमें लगता है ना, क्योंकि ये ऐसी चीजें मुझे इसलिए सेंटेंस में बोलनी पड़ती है क्योंकि हमें लगता है कि नहीं ये गलत काम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को देखा, मुसलमान है, बच्ची है, और उसने कुछ ऐसी चीज पहने हुए, हम देखते हैं ना मीडिया, सोशल मीडिया पे, हम कहते हैं कि चलो अल्लाह का शुक्र हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, राइट? दिल के अंदर कहीं ये आवाज आती है अगर ऐसे है तो। लेकिन फिर आप क्या करती हैं, आप उसको फौरन कमेंट दे देंगे कि माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी नाइस, या फिर आप उसको थम्स अप भेज देती हैं या उसको हार्ट भेज देती हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे? आपको पता है, कभी दिल के अंदर टटोल के देखें। आपको जो कुरान से थोड़े बहुत भी जुड़े होते हैं ना, उनको तकलीफ होती है। ऐसे हो ही नहीं सकता, ये हमारी नेचर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिल्ट इन की हुई है ना। हमें तकलीफ होती है, लेकिन हमें सोसाइटी का प्रेशर होता है। हमें ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि अबादात की मोहब्बत से, अपने माँ बाप की मोहब्बत से और उसके औलाद की मोहब्बत से ज्यादा है, तो फिर तैयार हो जो उसके अल्लाह के फैसले के लिए। हमें डर होता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे बात करना छोड़ दे, या पार्टीज में बुलाना छोड़ दे, या फिर मैं पॉपुलर ना हूं अपनी फ्रेंड्स के दरमियान में कि देखो जी ये तो एक कहती नहीं, तो मैंने उसको ओके कर दिया, फिर उसने इतनी चीज पोस्ट की है। तो ये होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे कि दीन की समझ अता कर दे, क्योंकि देखिए नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे होते हैं, ये सारा कुछ साथ साथ छोटी छोटी चीजें भी साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन आप पता है क्या, दीन ऐसा नहीं है कि अच्छा थोड़ा सा दीन ले लिया और थोड़ी सी दुनिया भी ले ली। दीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ए लोगो, ए ईमान वालो, दीन में पूरे के पूरे आ जाओ, पूरे के पूरे आओगे तभी आसानी होगी। वल्लाही आप कभी आपकी जिंदगी में सुकून हो नहीं सकता जब आप ऐसे होंगे कि अच्छा ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं, ये भी नहीं। दीन पूरे का पूरा लेना है। और वो पता है, एक डर होता है हमारे अंदर, एक खौफ होता है कि अगर हमने पूरे के पूरे आगे तो हमारी जिंदगी में शायद को फन खत्म हो जाएगा, या हमारी जिंदगी तो पता नहीं बोर हो जाएगी। ये मैं आम बात कर रही हूँ। देखिए एक लेवल है जो ऑलरेडी है, उनको तो पता है इस बात का ना। मैं इस वक्त बात उनसे कर रही हूँ जो आने की कोशिश करते हैं और डर रहे होते हैं, लेकिन उनको क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं किया हुआ ना, तो इसलिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वल्लाही इसको टेस्ट करके देखें। जिसने वो कहते हैं ना आम नहीं खाया, उसको क्या पता कि उसकी खुशबू क्या और उसका टेस्ट क्या है। जिसने दीन नहीं समझा, तो बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन जिसने दीन को टेस्ट नहीं ना किया पूरे का पूरा, उसको पता ही नहीं कि इसकी लज्जत क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलुस सिल्मी काफ़ा वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब हम देखते हैं आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और मोहब्बत का वाकया होगा, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लक़द नसरकुमुल्लाह, कि अलबत्ता यकीनन मदद की अल्लाह ने तुम्हारी फी मवातिन कसीरा, तो बहुत सी जगहों पर। ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें अकेले छोड़ दिया। अब कई दफा देखिए हमारे ज़हन में ये आता है ना, यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कई जगह पे मदद की तुम्हारी, तुम्हें याद नहीं है ये बात कि अगर हमें लगता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे इस्लाम के लिहाज से इजाजत नहीं है, मैं नाम नहीं अभी ले रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ वैसे आपको, तो आप ये कहते हो कि भाई अब यही तो जॉब है मेरे पास, अगर मैंने छोड़ दी तो मेरा घर कैसे चलेगा, तो फिर मेरा ये काम कैसे होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी सोच अगर ये है कि देखिए अगर हराम जब कर रहे थे, हराम तरह की कमाई करने की कोशिश की हमने और वो लेके आ रहे हैं घर में, तब अल्लाह ने अगर आपको अता किया है तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हलाल में अता नहीं करेंगे? उस वक्त तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर सारे दरवाजे खोल देते हैं, एक दफा कदम उठाने की बात होती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें कितनी जगहों पे तुम्हारी मदद की। वह यौमा हुनैन, और हुनैन के दिन तुम भूल गए हो। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुनैन का जिक्र किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इस आजबतकुम कसरतुकुम, जब भली लगी तुम्हें तुम्हारी कसरत, फलम तुगनी अनकुम शैया, तो कुछ काम ना आई तुम्हारी कसरत। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि ये क्या हुनैन का, जंग हुनैन का वाकया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मोहब्बतों का जिक्र में ये क्यों पेश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हुनैन जो थी ना, फतह मक्का हुई थी। फतह मक्का जब हुई है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 के करीब सहाबा थे जो इनके साथ आए थे। तो लेकिन उस वक्त तो कोई जंग ऐसी हुई नहीं, कोई माले गनीमत भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो फतह हो गई थी मक्का।
मक्का फतह हो गया था। तो अब जैसे ही मक्का फतह हुआ तो ये एक कबीला था जो ताइफ और मक्का के दरमियान में एक वादी थी जिसमें हवाजन और सकीफ 2 कबीले थे, ये रहते थे, ये मुसलमान नहीं थे। अब इनको ये डर हुआ कि ये तो मुसलमानों ने तो मक्का भी फतह कर लिया सारे का सारा, तो अब ये ना कि हमारी तरफ आएंगे तो उससे पहले हम इनके ऊपर हमला करते हैं। और हवाजन के जो लोग थे ना ये बड़े जबरदस्त तीरंदाज भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि हवाजन के लोग तैयारी कर रहे हैं हमला करने की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि उससे पहले कि वो हमला करें हम उनकी तरफ चलते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 14,000 लोग थे, क्योंकि मक्का भी फतह हो गया था तो मक्का के लोग भी थे, इर्द गिर्द के कबीले के जो लोग थे उन्होंने भी जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मक्का को फतह कर लिया तो एक होता है ना रोब दिल में आ जाता है। अभी ये मुसलमान कुछ नहीं हुए थे, लेकिन इनकी वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा इंक्लाइन थे इस्लाम की तरफ, तो वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। अब यह 14,000 लोग और वहां पे कितने थे? 4,000। आपको याद है बदर का सबसे पहली जो जंग थी कि कितने मुसलमान थोड़े थे और कितने काफिर मुशरिकीन मक्का थे और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फतह दी थी। और ये नेचुरल चीज होती है ना कि कभी दिल में याद होता है लो अब तो हम 14,000 और वो 4,000 हम तो यूं करके उनको खत्म कर देंगे, जंग करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे ये सहाबा थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ इतनी सी बात जो सबके दिल में नहीं आई, कुछ लोगों के दिल में ये बात आई कि हमारी कसरत इतनी है। इसमें कितना बड़ा सबक है ना हमारे लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कि तुम कसरत में ज्यादा थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर तुम्हें दिखा दिया कि क्या हुआ था। क्योंकि हम भी ये सोचते हैं ना कभी कि ये काम तो बस मैंने तो सारा बंदोबस्त कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेकोरेशन वाला भी बुला लिया था तो खाने का इंतजाम भी है तो हमने ये भी कर लिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पे तवक्कल नहीं जब होता ना कि हम अपने आप पे तवक्कल कर लेते हैं, अपनी मीन्स पे बेसिकली तवक्कल करना, इसमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते जब तुम इस बात पे तुमने तुम्हारी कसरत पर तुमने अपने आप को सोचा कि मेरे भली लगी तुम्हें, तो अनकुम शैया तुम्हें कुछ भी, वदाकत अलैकुमुल अर्द तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते तो तंग हो गई तुम पर जमीन, बीमार रुहिबत इसकी कुशादगी के बावजूद, सुम्मा फिर वल्लाई तुम मुदबरीन के तुम वापस फिरे, पीठ फेर कर तुम फिर गए। अब यहाँ पे क्या था आप देखिए, ये वर्ड भी सोचने वाला है कि जमीन तंग नहीं थी, ऐसे नहीं कि उनको जो शिकस्त शुरू में हुई थी तो उसमें क्या था, जमीन वसत में ही थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये बताना चाहते थे कि अब तुम्हारे दिल में इतनी सी भी अगर बात आई है तो अब अल्लाह की अगर मर्जी नहीं होगी तो तुम्हें कुछ कामयाबी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे अंदर जब भी हम कोई काम करें अपने मीन्स 100% पूरे करने के बाद हम अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल करें, ये आदत बना लें अपनी। इंसान है, गलती होती है हमसे, लेकिन इस बात को, इस आयत को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हुनैन में फिर अब क्या हुआ था कि जब ये जा रहे थे और बड़े खुश भी थे कि हम 14,000 का लश्कर, अब देखें हम जाके क्या करते हैं। अब ये एक वादी थी जो थोड़ी ढलान में थी, अब वहां से ये सारा लश्कर गुजर है। अब हवाजन के जो लोग थे, मैंने आपको बताया ना वो तीरंदाज बड़े जबरदस्त थे, वो डिफरेंट जगहों पे उस वादी में दरख्त के पीछे, पहाड़ के पीछे, इधर उधर वो सारे छुप गए। जैसे मुसलमान उस वादी के ढलान में से जैसे गुजर रहे थे उन्होंने हर तरह से तीर बरसाने शुरू कर दिए। अब मुसलमान जो है वो एकदम से तितर बितर हो गए, कोई इधर भाग गया कोई उधर भाग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ महाजिर, कुछ अंसार और अहले बैत में से जो लोग थे वो सिर्फ बचे थे, बाकी सारे के सारा आप सोचे 14,000 के लोग सब इधर उधर भाग गए। अब ये मैं बताती हूँ आपको कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, क्योंकि वो तो उस वक्त वहां मौजूद थे ना, तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के दिन चंद महाजिर, अंसार और अहले बैत के सिवा सब मुसलमान जो है वो भगदड़ में इधर उधर हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्बास, असहाबे सुमरा को आवाज दो। हजरत अब्बास बुलंद आवाज वाले थे। सुमरा वो दरख्त है जिसके नीचे सहाबे जिन्होंने बैत रिजवान की थी ना, उस दरख्त को सुमरा कहते हैं। तो सुलह हुदैबिया के दिन जिन्होंने बैत की थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबे सुमरा को आवाज दो। हजरत अब्बास कहते हैं कि जब मैंने उनको पुकारा तो बाखुदा जब पुकारा तो उस तरह पलटे जैसे गाय अपने बच्चों की तरह पलटती है, और कहने लगे या लब्बैक कहते हुए दौड़ते हुए आए। इसी तरह से अंसार, बनु हारिसा, बनु खिजरज को पुकारा, सब जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तंदूर गर्म है। आपने चंद हाथ में कंकरियां उठाई और कुफार के चेहरों की तरफ उन्होंने उनको फेंका, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे मोहम्मद की कसम ये शिकस्त खा जाएंगे। अब यहाँ पे यही देखने की बात है ना, मेरे और आपके लिए समझने की यही बात है
کہ ہمارے پاس کتنے بھی مینس ہوں، کتنے بھی ذرائع ہوں، لیکن ہم نے توکل کس پہ کرنا ہے کہ اللہ پہ توکل ہوگا کہ یا پاک پروردگار اگر آپ چاہیں گے تو اس میں کامیابی ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کامیاب اس کو کر دیں اور ہمارے لیے بہترین کر کے. کیونکہ اکثر ڈر لگتا ہے نا کہ کوئی دعا تو اللہ کو تو پتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی دعا کرتے وقت تو آپ ایسے نہیں کہ زبردستی مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ چیز چاہیے، تو پھر اگر نقصان والی چیز ملتی ہے تو دیکھو مانگی تو تم نہیں تھی. اکثر ایسی چیز بھی تانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا، میرا دل ہے اس دعا کی قبولیت میں، میری ضرورت ہے یا پاک پروردگار، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، آپ نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے. یا پاک پروردگار میرے لیے اس دعا میں برکتیں ڈال دے، خیر ڈال کے میرے لیے یہ دعا قبول کر لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں نا. اگر مانگنے ہم کیونکہ اپنا فیوچر نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم نے کوئی ایسی دعا بھی مانگی ہے جو ہمیں نہیں پتا بعد میں ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن ہم نے مانگی ہی ایسی ہے کہ یا پاک پروردگار اس میری خواہش کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بہتر کر دیں گے. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر انزل اللہ نے نازل کیا سکینتہ اپنی سکینت کو علی رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وَأَنزَلَ اور نازل کیا جنودًا لَمْ تَرَوْهَا ایسا لشکر کہ نہیں دیکھا تم نے ان کو، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور عذاب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کو، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ تو یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے کافروں کا. اب یہاں پہ دیکھیے سورۃ توبہ جو ہے نا، یہ بہت غور سے، بہت دھیان سے اور سوچنے والی سورہ ہے، کیونکہ یہی سورہ ہے جس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو غیر مسلم ہیں وہ انہی کی آیات کو لے کے اتنا بگ ڈیل بنا دیتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں تو یہ لکھا ہوا ہے. ہمیں جب تک خود نہیں پتا چلے گا اس وقت تک، دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہیں جی فلاں عالم دین ہے وہ جواب دیں گے، ہمیں کیا پتہ ہے. لیکن عام لوگ تو میرے اور آپ جیسے عام لوگوں سے بات کریں گے نا، تو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا. اور بدقسمتی سے بعض مسلمان جو ہیں اگر ان کو علم نہیں ہوتا تو وہ بھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑا ہی مشکل حکم تھا، تو ایسے کیسے حکم آ گیا. تو لیکن جب ہمیں پتہ ہوگا تبھی تو ہم جواب دے سکیں گے نا. تو اس لیے اس سورہ کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور ایک ایک آیا کا آپ کو آنسر پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیا کیوں نازل کی تھی اور اس وقت کیا حالات تھے، اس کا شان نزول کیا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے بدر میں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے نا، تو اس دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تو میں نے بتایا نا بھگدڑ بچ کے سب بھاگ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے تھے ان کے دلوں سے وہ خوف دور کرنے کے لیے، کیونکہ سکینت کا لفظ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں سکینت نازل کر دی. اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب ان کو فرشتے نازل ہوئے، جنگ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اب جیت جائیں گے، مسلمان جیت گئے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، کیونکہ اس سے پہلے تو فتح مکہ ہوئی تھی، فتح مکہ میں تو کچھ نہیں ملا تھا نا، کیونکہ بغیر جنگ کی فتح ہو گئی تھی. اب یہاں پہ کہتے ہیں اب ذرا غور سنیے کہ قیدی 6000 قیدی، اونٹ جو تھے وہ 24,000 تھے، بکریاں جو تھیں وہ 40,000 سے زیادہ تھی، اور چاندی 1,60,000 درہم کے برابر یہ ان کو مال غنیمت میں ملا تھا. اب اس میں جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ ہم دیکھیں کہ محبتوں کے بارے میں کہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. ہم جب ایسی کبھی بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مجھے بہت محبت ہے الحمدللہ، فوراً ایک ٹیسٹ آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، دیکھیں ٹیسٹ سے گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ٹیسٹ ہمیشہ اس پہ آتا ہے جو ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے اگر کسی لیول آپ سوچیں، ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں، جب آپ وہ کورس کمپلیٹ کریں گے تو پھر ہی ٹیسٹ آئے گا نا. تو جس وقت ہم ایک لیول پہ پہنچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم نے الحمدللہ یہ لیول کمپلیٹ کر لیا اپنی سوچ سے اور اپنے دل سے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ آپ کا یہ حکم تو اب میں پورا کرنے والی ہو گئی ہوں، تو اس پہ ٹیسٹ آتا ہے، کیونکہ آپ کی تو پوری تیاری ہے. ٹیسٹ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا گھبراتے ہیں ٹیسٹ سے کہ یا اللہ ٹیسٹ سے آزمائش نہ آنے. آزمائش جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح کی ہوتی ہے. میں آسان ورڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی تو پوری تیاری تھی آزمائش کے لیے، اب آزمائش آ گئی، آپ اس میں پاس ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ. اب اگلے درجے پہ چلو. ایک درجے سے دوسرے درجے کا پتہ ہے کتنا فرق ہوتا ہے. جیسے ہم زمین پہ بیٹھے آسمان سے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنا سا ستارہ نظر آتا ہے جبکہ وہ اتنا ہیوج ستارہ ہوتا ہے، تو ہمارے درجے بلند ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پوری تیاری کرنے کے بعد جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں تو کوئی فیل نہیں ہوگا انشاءاللہ.
अच्छा, अब यहाँ पे क्या टेस्ट था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कई रोज जो जराना एक जगह थी वहां पे माले गनीमत तकसीम किए बगैर रुके रहे कि शायद हवाजन के वफद जो है वो ताइब होकर मतलब तौबा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ जाए और उनमें से जो कुछ उनका खोया है मतलब जो माले गनीमत था वो खोया है सब वो वापस ले जाएं। जब तखीर के बावजूद भी कोई ना आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर माले गनीमत तकसीम किया। अब माले गनीमत जब तकसीम किया ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो अरब के कबाइल थे उनमें भी और कुरैश जो थे उनमें भी माले गनीमत तकसीम किया। अब ये बाज लोग ऐसे थे जिनका अभी मतलब वो इस्लाम में नहीं आए थे लेकिन इस्लाम की तरफ इनक्लाइन थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो उनको भी, और ऐसे लोगों का ज़कात में भी हिस्सा होता है कि पता होता है कि इस्लाम की तरफ आने वाले हैं लेकिन इनके हालात ऐसे नहीं है तो उनकी मदद करते हैं तो वो फिर इस्लाम की तरफ आने में उनकी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि अंसार सहाबा, आप सोचें कि क्या है ये खुतबा मैं आपके सामने रखना चाह रही थी कि आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत खुतबा दिया था कि अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और कबाइले अरब में माले गनीमत तकसीम किया और अंसार को कुछ ना दिया तो अंसार ने जी ही जी में पेचोताब खाया, यहाँ तक कि उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से जा मिले। अपनी कौम कौन सी थी? कुरैश थे ना। अब ये सारा वाकया पढ़ते पढ़ते ना आप जरा ये भी सोचिएगा कि थे तो इंसान ही ना, उनकी जगह हम भी होते तो हमारे ज़हन में भी ये बात आती। अब इतना माले गनीमत मिला और बाद साहबा के बारे में तो ये होता है कि उनको 100 ऊंट मिले, उन्होंने कहा जी मुझे और दे दें तो 100 और दिए, तो इधर इंसार को तो कुछ भी नहीं मिला। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि खुदा की कसम वो अपनी कौम के साथ मिल गए। तो कहते हैं कि मैं हजरत साद बिन उबादा जो है वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें ये सारी बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन सबको अंसार को एक जगह जमा करो और आपने वहां पे खुतबा फरमाया। इतना प्यारा खुतबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खुतबा जो है मैं रहीकुल मखतूम बुक है जो सीरा की किताब है, अगर आप लोगों को शौक है तो आप जरूर ये किताब एक दफा पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी सीरा बहुत डिटेल में है। तो उसी में से मैंने ये आपके सामने पेश कर रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार के लोगों तुम्हारी ये क्या चहमगोइयां हैं जो मेरे इल्म में आई हैं, और ये कि नाराजगी है मेरे से जो तुम जी ही जी में तुम मुझ पर महसूस कर रहे हो। क्या ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पास इस हालत में आया जब तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी, और मोहताज थे, अल्लाह ने तुम्हें गनी कर दिया, और बाहम दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए। लोगों ने कहा क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार के लोगों मुझे जवाब क्यों नहीं देते हो? अंसार ने अर्ज किया या रसूलल्लाह हम आपको क्या जवाब दे, अल्लाह और उसके रसूल का फजलो करम तो है ही हम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो खुदा की कसम अगर तुम चाहो तो कह सकते हो कि सच तो और जो कहोगे वो सच ही कहोगे, और तुम्हारी बात को मैं सच ही मानूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास उस हालत में आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला दिया गया था। मुश्रिकीन मक्का ने झुटलाया, कुरैश ने झुटला दिया था ना, और हमने आपकी तस्दीक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था, हमने आपकी मदद की। आपको धुतकार दिया गया था, हमने आपको ठिकाना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज थे, हमने आपकी गमख्वारी की और गमगुसारी भी की। ऐ अंसार के लोगों तुम अपने जी में दुनिया की इस आरजी दौलत के लिए नाराज हो गए हो जिसके जरिए मैंने लोगों का दिल जोड़ा है ताकि वो मुसलमान हो जाएं, और तुमको तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया है। ऐ अंसार के लोगों क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि लोग ऊंट और बकरियां ले जाएं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घरों में पलटो? उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर सारे लोग एक राह पर चले और अंसार दूसरी राह चले तो मैं अंसार की राह पर चलूंगा। ए अल्लाह रहम फरमा अंसार पर, इनके बेटों पर, इनकी बेटियों पर, इनकी जुर्रियात पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा सुनकर लोग इस कदर रोए कि उनकी दाढ़ियां भीग गई और कहने लगे कि हम राजी हैं कि हमारे हिस्से में और हमारे नसीब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। देखिए कितना प्यारा खुतबा था ना। यहाँ पे अंसार का टेस्ट हुआ था क्योंकि एक तरफ दुनिया की इतनी दौलत, आप अपने आप को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को वहां पे खड़ा करके देखें कि हम इंसान है। हम कभी कहते हैं ना जैसे कि
काश हम उस जमाने में होते, हम ऐसे करते। तो वही बात कि अल्लाह का शुक्र है कि हम इस जमाने में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनके बड़े दर्जात हैं कि वो बगैर देखे मेरे पे और मेरी सुन्नत पे ईमान लेके आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला पे ईमान लाए, कुरान पे ईमान लाए, तो उनके बड़े दर्जे हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि हम इस जमाने में हैं, हमारी थोड़ी पकड़ आसान हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इंशाअल्लाह आसानी के साथ माफ कर देंगे। बहुत प्यारा खुतबा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होते हैं ना, तो दिल चाहता है कि बस पढ़ते जाएं कि क्या कितनी प्यारी बात उन्होंने कही कि दुनिया लेके जा रहे हैं, बकरियां लेके जा रहे हैं, ऊंट लेके जा रहे हैं, तुम अपने रसूल को साथ लेके जा रहे हो, तो क्या ये सौदा घाटे का सौदा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे राजी हो गए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उनसे भी राजी हो गया। तो अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा फिर यतूबुल्लाहु, फिर मेहरबान होगा अल्लाह, मिन बाद ज़ालिक, बाद इसके, अला मन यशा, जिस पर वो चाहेगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि बाद में हुनैन का एक बहुत बड़ा रईस था, मालिक बिन औफ उसका नाम था, वो इस्लाम लेके आया, तो उसके पीछे पूरा कबीला इस्लाम ले आया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे खुशखबरी दे दी थी इस बात के लिए। अब देखिए, उस जमाने में यही होता था कि अगर जो बड़ा होता था ना, कि कबीले का रईस होता था या कबीले का बड़ा आदमी होता था, अगर एक इस्लाम ले आता था तो पूरा कबीला उसके पीछे इस्लाम ले आता था। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत फोकस करते थे कि ऐसे लोगों को में से कुछ लोग अगर इस्लाम की तरफ ले आएंगे तो फिर पीछे पूरे लोग इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल मुशरिकूना नजस, कि बेशक मुशरिकीन जो है वो नापाक हैं, फला यकरबू। अच्छा, यहाँ पे क्यों मुशरिकीन को नापाक कहा गया? क्योंकि ये शिर्क करते थे। और आप देखिए शिर्क का आगे डिटेल हम देखेंगे कि आज भी अगर हम देखते हैं अहले किताब के बारे में बात आती है, शादी के बारे में बात आती है कि उनके साथ शादी करना जायज है, ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे ऐसे अहले किताब जो शिर्क करते हैं ना, आप आज की पूरे जो भी जितना भी आप देखें हम कहाँ तक सबक लेके जाते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि होता है ना कि हम कई दफा फलानी ये फतवा दिया है तो उसके मुताबिक, हाँ नहीं उसने तो ये कहा था तो ये बात ऐसे जायज है। आप देखिए कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, और उस नस को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा जो यहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयात में बताई है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, मैं और आप है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बेशक मुशरिक जो है वो नापाक है, फला यकरबू, तो ना वो करीब आए, अल मस्जिद अल हरामा, मस्जिद हराम के करीब, बाद आमीम हाजा, इस साल के बाद। ये कौन सी बात हो रही है? क्योंकि 9 हिजरी में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक तो काफिला लेके गए थे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज के लिए अमीर बना के भेजा था, और बाद में हजरत अली को जो 5 इस सूरत तौबा की आयात हैं वो नाजिल हुई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा था कि वो हज वाले दिन जो है वो ये आयात का अनाउंस कर देंगे कि इस साल के बाद कोई मुशरिक जो है वो हज पे नहीं आएगा, मतलब हज नहीं करेगा, इस मस्जिद के करीब भी नहीं आएगा। तो वही बात जो हमने पहले पढ़ी है, फ़इन खिफ्तुम, और अगर खौफ हो तुम्हें, आइलतन, मुफलिसी का, फसौफा युगनीकुमुल्लाह, तो अनकरीब गनी कर देगा तुम्हें अल्लाह, मिन फजलिही, अपने फजल से, इंशाअ, अगर वो चाहेगा। इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, के अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। अब यहाँ पे ये बात जो हमने पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुमको ये डर हो कि मुफलसी का डर हो, तो ये क्या था? क्योंकि हज जो करते थे ना, क्योंकि आपको पता है ना मुशरिकीन मक्का तो हज करते, वो तवाफ करते थे खाना काबा का,